ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा गदामह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगणललिता शाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेशा गोपिकान्ता राधाकान्ता नमोस्तुते। तप्त काञ्चन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी शुभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम sorry okay, sorry, got little cold. Okay, Hare Krishna. So today we are going to go to Vrindavan's one of the biggest forest called Mahavan. तो आज हम वृंदावन ब्रज मंडल के सबसे जो बड़ा जो वन है महावन। मेरी आवाज आ रही है? Very feeble for me, Prabhu. Maybe for others. बाकी लोगों को, बाकी भक्तों को मेरी आवाज। ब्रज मंडल के जो सबसे बड़े वन महावन में प्रवेश करेंगे। Okay. So Mahavan, most of the three important things. One is Raval, Gokul, and Dauj. So we are going to see from Vrindavan to Mathura. We will first go to Gokul. From Gokul we will go to Dauji and then to Raval. तो पहले हम वृंदावन से मथुरा की ओर जाएंगे, मथुरा से हम गोकुल जाएंगे, गोकुल से दाऊद जी के मंदिर जाएंगे, दाऊद जी के मंदिर से रावल जाएंगे। Hare Krishna. Prabhu, I am not able to hear you, Prabhu. Is it? I will check with others whether बाकी लोग मेरी। The most you want to see is the temple where Chaurasi Khamba. It is called as Chaurasi Khamba, which has 84 pillars. Then we will take darshan of Bhajan Kutir of Sanatana Goswami, and then other places also. Gokul place. तो ये महावन में हम जो हैं वो गोकुल स्थित है, और अब हम जो हैं वो 84 खंबा जो कि प्रमुख मंदिर है वहां का दर्शन करेंगे। उसके बाद हम सनातन गोस्वामी के भजन कुटीर पे भी जाएंगे, और अन्य स्थलों का भी में हम दर्शन करेंगे। और ये जो आप चित्र देख पा रहे हैं, ये नक्शा है हम जिसका उपयोग करके प्रमुख स्थलों पर दर्शन करेंगे। Okay. So Nandamana's father was called as Parjanya Gopa. Initially he resided here near this Nandagaon, and then he moved here for some time, and he had 5 sons, namely Upanda, Abhinanda, Nanda, Sunanda, and Nandana. And he also had 2 daughters. Okay, and middle son Nanda Baba had no sons, so no children. So therefore he came and played to Lakshmi Narayan. Like, this mandir is called Lakshmi Narayan. So he used to Upananda, Parijanya Gopa usually prays in this mandir for having his middle son Nanda Maharaj to get children. पर्जन्य गोप जो थे वो नंद महाराज के पिताजी थे, और नंदगांव जाने से पहले वो कुछ समय तक यहाँ पे निवास करते थे। और उनके जो 5 पुत्र थे, एक का नाम था उपनंद, अभिनंद, नंद, सुनंद और नंदन, और उनकी 2 पुत्रियां भी थी, सनंद और नंदिनी। पर्जन्य गोप के जो तीसरे पुत्र थे नंद, उन्हें कोई बच्चा नहीं था, तो उस वजह से उन्होंने इस स्थल पर आकर लक्ष्मी नारायण जी की पूजा अर्चना की, और जिससे कि उन्हें कोई पुत्र या पुत्री की प्राप्ति हो। So their main business was cow protection and as well as farming.
तो पर क्योंकि ये लोग गोप थे तो इनका जो प्रमुख व्यवसाय था वो था गोरक्षा और खेती, कृषि। Okay. So, as we all know, when Krishna was born as the eighth child of Devaki, that night Vasudev crossed over Yamuna river and came to this place called Gokul. तो जैसा कि हम आप सबको पता है, वसुदेव देवकी की जो 8वां पुत्र था उसको लेकर कर वसुदेव जी यमुना पार करके इस स्थान पर आए थे जिसे गोकुल नाम से जाना जाता है। So we will take darshan of Gokul, very very auspicious place where Krishna was in the first initial days. He was here, and Yogamaya also was born here. So we'll go here. Yes, we'll take darshan. Yes. So this is the main place where you can see the deities, and also this place is called as Chaurasi Kamba, 84 pillars. The pillars are the oldest pillars. Most of them are very old, at least that whatever they are able to recollect past 5,000 years. But using these pillars, the entire temple or this place has been constructed by various generations of people. तो यहाँ पे आप जो है ये जो मुख्य मंदिर है, यहाँ पे आप कृष्ण के विग्रह के दर्शन कर पाएंगे। और इसी स्थान पर जो है वसुदेव जी ने योग माया और कृष्ण को यहाँ पे लाकर जो है यहाँ पे अदला बदली की थी। ये वर्तमान काल का जो मंदिर है वो काफी पुरातन है और ऐसा कहा जाता है कि 5,000 वर्ष पुराना है। और इसे 84 खंबा मंदिर के भी वजह के नाम से भी विख्यात है, क्योंकि इस मंदिर के प्रांगण में 84 खंबे हैं और ये जो मंदिर है वो काफी पुरातन है। The next one. Most importantly, the pillars are very old, so they have taken out the pillars and reconstructed the entire temple. और सबसे महत्वपूर्ण ये चीज है यहाँ पे कि ये जो खंबे हैं ये बहुत ही पुरातन है और वर्तमान काल में उन पुराने खंबों का उन्हें निकालकर पुनः उन्हीं खंबों का उपयोग करके इस मंदिर का निर्माण कराया है। So these pillars are so fortunate because Krishna has touched these pillars. Krishna used to play around the pillars, his friends, Yashoda Maya, and also we are also very fortunate to take darshan of these pillars. In the entire Vrindavana, everything is spiritual. और ये जो खंबे हैं ये बहुत ही भाग्यशाली खंबे हैं, क्योंकि यहाँ पे कृष्ण ने इनको स्पर्श किया है। कृष्ण ने इनके साथ कई लीलाएं भी की हैं। यशोदा माई, नंद महाराज इत्यादि जो है इन खंबों का स्पर्श किए हैं। तो हम भी बहुत भाग्यशाली हैं कि हम इन दिव्य खंबों का दर्शन कर पा रहे हैं। So Krishna started crawling in this courtyard, and Krishna's initial baby steps moving around this place all happened in this beautiful mandir in Gokul. तो कृष्ण जो है वो जो अपने बचपन में यहीं पे उन्होंने चलना सीखा, यहीं पे उन्होंने अपने पैरों पे खड़ा होना सीखा और इसी मंदिर के प्रांगण में ही उन्होंने अपना बचपना बिताया है। So in this courtyard only when Pranavarta was trying to take Krishna, and then initially Putana also came, and then Sakatachura also tried to come and kill Krishna. इसी मंदिर के इसी स्थल के प्रांगण में ही सकटासुर और पूतना, तृणाव्रत इत्यादि जो राक्षस थे इसी स्थल के अहाते में ही वे आए थे और भगवान ने उनका वध किया था। Okay, we can take darshan of the deities. Nanda Maharaj and Yashoda Maya, Krishna. तो आप यहाँ पे विग्रह के दर्शन कर पा रहे हैं। नंद महाराज हैं, नंद महाराज दाईं बाईं तरफ नंद महाराज यशोदा माई है और बीच में कृष्ण है। बाबा की जय, यशोदा मैया की जय, कृष्ण भगवान की जय। Okay. Prabhuji, that there was a fourth vigraha, Prabhu, so that is Krishna only. Yes. So next to that pond itself, there is another small building now reconstructed. This is the place. Prabhuji, that both of them are Krishna only, true? Yeah, that is Balram. That is Balram. Okay. तो एक कृष्ण एक बलराम है।
Yeah, next to तो ये one जो second. स्थल है, ये जो स्थल आप अपने मोबाइल के पटल पे देख पा रहे हैं, ये चित्र जो है, इस स्थल पर कृष्ण ने पूतना, तृणावत और सक्टाचुर इत्यादि जो असुर लोग थे, उनका इसी स्थल पर उन्होंने वध किया है। So we'll go there, take darshan also. We all know, like, when Krishna was transferred over the night, Kamsa was having a doubt, and then he called his friends, his ministers, and then immediately they discussed and found that no, all the babies whomsoever born in Mathura should have to be killed. So Kamsa calls Putna, and Putna disguises herself as very beautiful gopi, and then just by seeing her, all the gopis were so much affection attracted. They didn't ask anything, just by her cheating or acting her beauty. She just entered into Krishna's chamber and she tried to kill her using her milk. But just Krishna, just like taking milk from the mother, he just not only took her sucked her this one, but he also sucked her life air and killed her. तो जैसा कि आपको कथा पता है कि जब योग माया और कृष्ण की अदला बदली कर दी वासुदेव जी ने, कृष्ण को मथुरा से गोकुल पहुंचा दिया। उसके बाद योग माया ने बताया कि तुम्हारे जो रावण कंस को पता चला कि जो आठवां पुत्र है वो कहीं और जन्म ले चुका है, तो उस संशय को दूर करने के लिए उसने अपने मंत्रियों को बुलाया और मंत्रियों से विचार विमर्श करने के बाद उसने पूतना नामक राक्षसी को गोकुल में भेजा और उसे ये कार्य दिया गया था कि उस समय जितने भी बच्चे पैदा हुए थे उन्हें सबको वो मारने के लिए वो आई थी। तो पूतना जो कि राक्षसी थी, उसने इस तरह से अपना सुंदर वेश धारण किया, इस तरह से सुंदर रूप बनाया, ये सारे जो ब्रजवासी हैं उसे देखकर मंत्रमुग्ध हो गए और इस चीज का लाभ उठाते हुए पूतना जो है वो उस कमरे में पहुंच गई जहां पे कृष्ण थे। तो पूतना का उद्देश्य ये था, पूतना ने अपने स्तन पर कालकूट नामक विष लगाया था, जिसका पान करने मात्र से उसे ऐसा लगता था कि उसे कालकूट जो है बहुत भयानक विष होता है, जिसका जो कोई भी पान कर लेता है वो उसकी तुरंत मृत्यु हो जाती है। तो पूतना ने सोचा कि कृष्ण भी कोई सामान्य बालक है और जैसे कालकूट उसके स्तन को पान करेंगे और कृष्ण जो है उनकी हत्या हो जाएगी, वो मर जाएंगे। लेकिन उसके विपरीत कृष्ण ने पूतना का स्तन पान तो किया ही, जिसपे कालकूट लगा हुआ था, और उनके दूध का पान किया और दुग्ध के साथ उनके जो प्राण वायु है उनका भी पान कर लिया। इस तरह से पूतना का कृष्ण ने वध कर दिया। Krishna, even though she came in the as a demon, but even she came as in the form of motherly way, Krishna gave her that position in the heavenly planets. Even though she was wicked in her mind and action, but in the form she came in the form of mother. So Krishna gave her that position in the spiritual world. पूतना का वध करने के पर्यंत कृष्ण ने पूतना को अपनी धात्री का पद दिया गोलोक में। कृष्ण जो है, चूंकि भले ही जो पूतना जो है वो कृष्ण का वध करने आई थी अपने स्तन पर कालकूट विष लगाकर, लेकिन क्योंकि उसने अपनी कृष्ण की माता के रूप में अभिनय किया, तो भगवान ने उसके अभिनय के सार को लिया। तो सार क्योंकि उसने माँ का कार्य करने के लिए उसे अपने स्तन का पान कराया, इसलिए कृष्ण ने सार को ग्रहण किया और पूतना को बहुत ही उच्च पद दिया गोलोक में, उसे अपनी धात्री का पद दिया। We should understand that Krishna's killing is also giving mercy to them. तो हमें ये भी समझना चाहिए कि कृष्णा का वध करना भी एक प्रकार से कृपा है। तो कृष्णा का वध करना और कृष्णा का भक्तों का संरक्षण करना दोनों ही एक स्तर पर समान ही है, उसमें कोई फर्क नहीं है। Actions he does is only for benefit of the individual जीवात्मास। और भगवान जो भी कुछ करते हैं, जो भी कुछ लीलाएं करते हैं, जैसा भी उनका जो भी कार्यकलाप है, चाहे उनका मारना हो या कुछ करना हो, दोनों ही जो है वो जीव के लिए हितकारी है। Okay, we will just go enter, yes, and take darshan.
तो यही वो स्थल है जहां पर पूतना राक्षसी जो आई थी कृष्ण को अपना स्तनपान कराने के लिए। So what happens is, when Krishna was born, Nanda Maharaj and his close friends, they will go to Mathura to visit Mathura and pay the tax and everything. So that time there will not be any of the senior Gopas and Nanda Maharaj. Nobody will be there. So by that time Putana will come. Putana will try to kill Krishna, and then eventually Krishna will kill Putana, and she will just take a very her original very huge monstrous form, and she will just come to the courtyard of this particular temple, this palace, and she will fall down. Immediately all the other Gopas, whomsoever, they will see this huge form, and immediately they will start cutting her body into multiple pieces. It's a very huge body, so it cannot be burnt as it is. So all the other Gopas will start cutting her body, and when they start cutting the body, they will see so much of they will smell so much of nice fragrance, and when they start burning, for example, they start only her legs part separately, then hands separately, and other body parts separately. But just by burning the whole body, there will be so much of good smell or effervescence or essence that is coming out of her body. तो पूतना का जब कृष्ण जो है वो प्राण हरने लगे तो पूतना ने अपना विभत्स और जघन्य रूप धारण किया, और इस तरह से, और वो उसने अपना विशाल रूप भी धारण किया जो कि बहुत ही भयानक था, डरावना था, और अपने आप को बचाने के चक्कर में वो आके इस स्थल पर गिर पड़ी। और लीला ऐसी है, कथा ऐसी है कि इस दौरान जब ये सारी लीला हो रही थी तो उस समय गोकुल में कोई भी वरिष्ठ जो गोप थे वो उपस्थित नहीं थे। सारे वरिष्ठ गोप जो थे वो कंस को कर देने के लिए गए थे मथुरा, अपने कर का भार, क्योंकि कंस जो थे वो राजा थे, तो उन्हें कर चुकाने के लिए गए थे। और जब वो वापस आते हैं तो वे देखते हैं कि एक विशाल काय जो है शरीर पड़ा हुआ, मृत शरीर पड़ा हुआ है। तो फिर सारे व्रजवासी ये युक्ति निकालते हैं किस तरह से इसे जलाया जाएगा, ये इसे नष्ट किया जाएगा। तो सारे व्रजवासी जो है पूतना के विशाल शरीर को काटते हैं पहले, और काट के जब उसे जलाते हैं तो उससे बहुत ही सुगंधित खुशबू या महक निकलती है, और जो कि प्रायः जो है मृत शरीर से प्रायः जो है दुर्गंध निकलती है, लेकिन पूतना के शरीर से जो है वो बहुत ही महक, मतलब खुशबूदार महक निकल रही थी, सुगंध आ रही थी पूतना के मृत शरीर से। It is all because of sparsham. It is all because of Krishna's touch that her body got transformed into such a state. और ऐसा कोई अब प्रश्न कर सकता है कि ऐसा क्यों हुआ कि पूतना के शरीर से जो सुगंधित शरीर हो गया पूतना का। तो आचार्य बताते हैं कि क्योंकि पूतना ने भगवान कृष्ण का स्पर्श किया था, इस वजह से पूतना का जो शरीर है वो बहुत ही खुशबूदार हो गया। And after some time, another demon called as Trinavarta came in the form of a whirlwind, in terms of a tycoon. So at that moment, Krishna was lying on the lap of Srimati Yashoda Maiya, and he was just seeing her. Immediately, when he realized that another demon has come, he made him so heavy that Yashoda Maiya could not hold him on her lap. So she just left him on the cradle so that Trinavarta can carry. So immediately Trinavarta will come, will make a whirlwind, and immediately he will carry Krishna on top of this place. And then just Krishna, at that moment, he will just get hold of the neck of the Trinavarta and just kill him with his so soft baby hands. तो पूतना की मृत्यु के तुरंत बाद ही तृणावत नामक असुर भी उसने गोकुल में प्रवेश किया। तो तृणावत जो असुर था वो एक बवंडर के रूप में आया था। तो लीला ऐसी है कि एक दिन माता यशोदा बालक कृष्ण को लेकर अपने घर के चौखट पे बैठी हुई थी,
और तभी कृष्ण को आभास हो गया कि ये तृणावर्त नामक राक्षस जो है बवंडर के रूप में आ रहा है। तो कृष्ण ने अपनी माया से अपने शरीर को इतना भारी कर दिया कि माता जो है कृष्ण को उठाने में सक्षम नहीं रह गई। तो उन्होंने बालक कृष्ण को भूमि पर रख दिया, और जैसे ही कृष्ण माता ने बालक को भूमि पर रखा, उसी समय तृणावर्त जो कि बवंडर के रूप में था, उसने कृष्ण को अपने अपने गोदी में उठा लिया, और इस तरह से बवंडर के स्वरूप में उन्हें उड़ा ले गया। पर कृष्ण जो कि परम पुरुषोत्तम भगवान है, उन्होंने अपने कोमल हाथों से कृष्ण को तृणावर्त का अपने अपने कोमल हाथों से तृणावर्त का वध कर दिया। So this happened in this outside courtyard, outside the mandir, this palace. तो ये लीला जो है वो इस राजमहल के बाहर के अहाते में घटित हुई। So after that time, another demon will be sent by Kamsa called Shakatachura. He'll be invisible, and he will take in the form of a cart. So he will come and he will try to kill Krishna, but Krishna will be lying in the courtyard. So similarly, when the car demon came, Krishna will just with his small baby toe, he will just make one small push. Immediately, the demon, the Shakatachura will go up on the sky for more than 100-200 feet, and then he will just come and fall down and then get killed. This will be seen only by the other gopis and some other gopas who were there around. So this would not have been seen by Nanda Maharaj or Yashoda Maiya. इस लीला के तुरंत बाद ही यहाँ पे एक सक्टासुर नामक असुर भी आता है, जो कि एक लकड़ी की गाड़ी का स्वरूप लिए रहता है। और लीला ऐसी है कि कृष्ण जो है बरामदे में खेलते रहते हैं, उसी समय ये असुर जो है वो उस बरामदे में पहुंचता है गाड़ी का स्वरूप लेके, और कृष्ण को आभास हो जाता है कि ये जो है ये गाड़ी नहीं असुर है। तो अपने कोमल पैरों से बस उसे स्पर्श करते हैं, और वो स्पर्श करने मात्र से ही उस असुर का, जिसने उस गाड़ी का स्वरूप लिया था, उसकी मृत्यु हो जाती है। ये जो लीला है ये प्राय जो है ये लीला जो है नंद महाराज यशोदा माई उस समय वहां पे उपस्थित नहीं थे, तो सिर्फ कुछ गोपियों ने इस लीला को देखा। So when a tumultuous sound appears, they all rush out and ask, "What happened? What happened?" No. There's one just like that. One car came and just Krishna just put his toe finger leg. Immediately the car went up in the air, and then he just got burst and fell down. Then everybody will be shocked. How can it happen? He's a small baby, just a newborn baby. How can it happen? No way. No. We have seen it in our own eyes. Krishna just lifted his leg. That's all. Within that moment, immediately, the big cart went up in the sky and came down. Then Yashoda will be much more scared. What happened? Then she will call all the priests. She will call all the pujaris, brahmanas, and then they will do all this pariharam. They will do this yajna, puja, and all, just to make sure that he is not affected by anything. तो कृष्ण के स्पर्श करने के मात्र से ही जो गाड़ी है वो सैकड़ों मील आकाश में जाती है, और फिर वो पुनः आके धरती पर गिर पड़ती है, और उसके गिरने मात्र से एक कोलाहलपूर्ण ध्वनि होती है, जिससे सारे जो नंद महाराज, यशोदा माई, सारे जो गोप हैं, सारे जो अचंभित हो जाते हैं, उस कोलाहल की ओर दौड़ते हैं, उस आवाज की ओर दौड़ते हैं, और पूछते हैं क्या हुआ। तो कुछ गोपियां जो वहां पे रहती हैं वो बताती हैं कि ये जो है सिर्फ बालक कृष्ण ने किया। उन्होंने अपने पैरों को अपने पैरों से बस इस गाड़ी को छुआ, और एक गाड़ी जो है सैकड़ों मील ऊपर आसमान में चली गई, और फिर पुनः आके नीचे गिर गई। तो ये चीज जो है ये घटना का विवरण नंद महाराज और यशोदा को ये पचता नहीं है। वो सोचते हैं ऐसे कैसे, कृष्ण तो छोटा सा बालक है, ये तो शिशु है अभी, ये ऐसे कैसे कर सकता है। तो नंद महाराज और यशोदा बहुत भयभीत हो जाते हैं, और कृष्ण की रक्षा के लिए वो बहुत सारे ब्राह्मणों को बुलाते हैं, उनसे तरह तरह का उपचार करवाते हैं, जिससे कृष्ण की सुरक्षा हो सके। Okay, we'll go. Yeah, this is the path, and then we'll go to Sanatana Goswami's kutir, close by. तो ये जो मार्ग है, अब हम सनातन गोस्वामी के कुटीर की ओर प्रस्थान करेंगे। यहाँ से you see there's a sign there, left hand side.
सो ये जो मंदिर देख पा रहे हैं, ये मंदिर जो है वो सनातन गोस्वामी पाद की भजन कुटीर है। Okay. So behind this is a big big place. Yeah. Wait, hold on, Prabhu. So yeah, this is the place where Rohini Mata stayed. Like when Kamsa was trying to capture his father's kingdom and doing everything, then that time itself, and then when Devaki and Vasudev was captured in the jail, Akrura and others will plan, like because they are trying to kill all the other relatives, then they thought it is better for Rohini to move or move away from Mathura. So Akrura and the others will help Rohini Devi to reach Gokul. So she stayed here in this Gokul next building, little away from the main place. So Rohini Devi stayed here, and when Devaki's seventh son was in her womb, then Krishna will call Yogamaya and tell her, you have to do one very important job. You have to transfer the womb of from the womb of Devaki, this Sisu, this baby, into the womb of Rohini, and Yogamaya will do that job. So she will go, she will transfer the Shishu, the baby, from Devaki's womb to Rohini's womb. So that night when she was sleeping, Rohini, she will suddenly realize she had some kind of a miscarriage. Immediately she woke up and she sees Yogamaya there, and Yogamaya explains to her, this is all the Lord's plan, that you will be pregnant now, and you will deliver a very beautiful, very strong person who will be always with the Supreme Lord, like that Yogamaya will say, and then Yogamaya will disappear. So that is this place. And after that, when this job was successfully done, Krishna will become very happy. He will say, you have done a very good job. So now the whole world will glorify you as Katyayini, as Krishna, as Vaishnavi and Kanya Kumari, like that. In everywhere, where all throughout the world, a lot of temples will be constructed for you. And you will also be born as a daughter of Yashoda, and then you will do one. We will do this miracle of again swapping, like that. Krishna will say. So the most very auspicious place that we are going to take darshan. The place is little in a very bad condition, but we can just take darshan here. तो ये यहीं पे निकट में एक स्थल है जहाँ पे रोहिणी माता जो है निवास करती थी। ऐसी कथा है कि जब कंस अपने पिता उग्रसेन इत्यादि को मारकर या उनको बंदी बनाकर कारागृह में डालकर उन्हें राज्य को हड़पना चाह रहा था, उस समय अक्रूर इत्यादि जो मंत्री थे, जो भले लोग थे, उन्होंने रोहिणी माता को, और उसी दौरान कंस ने वसुदेव और देवकी को भी कारागार में बंद कर दिया था। तो अक्रूर इत्यादि इन्होंने सोचा कि रोहिणी जी के रहने के लिए उपयुक्त मथुरा जो है उपयुक्त स्थान नहीं है, तो उन्होंने युक्ति से रोहिणी माता को इस स्थल पर गोकुल में लाकर निवास स्थान, मतलब उन्हें रहने के लिए व्यवस्था कर दी। तो कथा ऐसी है कि वसुदेव और देवकी के जो सातवां पुत्र था, तो कृष्ण ने योगमाया को निर्देश दिया कि उस सातवें गर्भ को वे जाके रोहिणी माता के गर्भ में स्थानांतरित कर दे। तो योगमाया ने उस एक रात्रि में उस गर्भ को, जो कि देवकी का जो गर्भ था, उसे रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरित कर दिया। इस क्रिया, जब ये बात कृष्ण को पुनः पता चली कि ऐसा योगमाया करने में सफल हुई है, तो कृष्ण जो है बहुत ही प्रसन्न हुए और उन्होंने योगमाया को तरह के उन्हें वरदान भी दिया। उन्होंने कहा कि आगे चलकर तुम एक और लीला करोगी जिसमें फिर से तुम जो है वो गर्भ में तुम्हें अदला-बदली होगी और तुम्हें एक कार्य पूरा करना है। साथ ही साथ तुमने ये कार्य किया है तो इस वजह से तुम्हारी बहुत ख्याति बढ़ेगी और कालांतर में तुम कात्यायनी, वैष्णवी, कन्याकुमारी इत्यादि नाम से जानी जाओगी और तुम्हारी जो ख्याति है वो पूरे विश्व भर में होगी और तुम्हारी पूजा अर्चना जो है बहुत सारे लोग करेंगे। और इसी से आप देखेंगे कि देवी जी का मंदिर देखिए बहुत सारे स्थलों पर है।
कन्याकुमारी के रूप में, कात्यायनी के रूप में, और तरह तरह से जो योग माया है उनकी पूजा जो है, पूजा अर्चना की जाती है। और योग माया जो है वो नंद महाराज और यशोदा की पुत्री के रूप में भी, नंद महाराज और यशोदा की पुत्री रूप में जन्म लेंगी, और फिर उनकी बदला बदली होगी कृष्ण के साथ, और वे फिर वसुदेव और देवकी जी के पास भी पहुंच जाती है। Okay, we'll go inside and take darshan. और ये जो स्थल है आजकल के दौर में बहुत ही, वर्तमान काल में ये स्थल जो है बहुत ही जीर्ण शीर्ण अवस्था में है, लेकिन फिर भी हम यहाँ पे जाएंगे और इस विग्रह के दर्शन करेंगे। Okay, next one. लास्ट 1 minute। Okay. Yeah, this is the main प्रभु one. जी That photo वो विग्रह जो था प्रभु जी, किस ये विग्रह जो है प्रभु जी वो किसका है? ये रोहिणी माता और कृष्ण है प्रभु? Yeah, this is Rohini Mata and Vasudev. This one is different. This was in Dauji. This, I don't know, the photo came here. We'll see this photo later, but the next one, yeah. This, go to next one. Yeah, this is the main one. This is Balram and Yogamaya, Vasudev and Rohini. Okay, and this is you. Okay, तो यहाँ पे आप बलराम जी को देख पा रहे हैं जो कि खड़ी हुई अवस्था में है, और रोहिणी और वसुदेव जी वो बैठी हुई मुद्रा में है, और मध्य में योग माया है जो बलराम जी के चरणों में खड़ी हुई अवस्था में है। तो आप ये कॉल खत्म हो जाएगी, फिर से आप लोग रिकनेक्ट करिए, फिर आगे की यात्रा पे चलते हैं। So next we are going to see very important place. We are keep walking. On the way, there is also a coop called as Nanda Baba's well. But before that, there is one ghat called as Brahmanda Ghat. So after Krishna starts crawling, and then his mother takes him to one day to Yamuna river to have bath and all. So she keeps Krishna in the river and the ghat, and then she goes takes bath. So at that time, Krishna just takes a little bit of mud, earth, and then he starts trying to eat it. So immediately all the gopis there, they just start complaining. See, your Krishna is eating mud. Come. So they shout, calling. Immediately Yashoda will just come and ask him to open his mouth. He will say, no, I'm not eating mud. No, you open your mouth. No, I'm not eating. No. And then she will forcefully open his mouth, and then immediately she will be so much astonished to see the entire Brahmandam. When I say entire Brahmandam, in Bhagavatam it is mentioned all the 7 upper planetary systems, all the 7 planetary systems, Swaha, Swarga Logam, then Atala Vitala Tala Tala Rasatala Pathala, all the 7 lower planetary systems, and also the entire Brahmandam, including the 5 Panchabhutams, everything she will see, and she will also see this Bhulokam, and within this Bhulokam she will see Mathura, then she will see Vrindavan, and then she will see Gokul. Within Gokul she will see the Yamuna, and then she will also see this Yamuna Ghat river, and then she will also see herself sitting there. She will be completely astonished. तो लीला ऐसी है कि यहाँ से इस स्थल से कुछ ही दूर पर ब्रह्मांड घाट स्थित है। वहां पे लीला ऐसी है कि एक बार कृष्ण जब छोटे बालक थे उस समय माता यशोदा उन्हें लेकर यमुना के तट पर गई स्नान करने के लिए बाकी गोपियों के साथ, और उन्हें कृष्ण को तट पर बिठा दिया और खुद स्नान करने लगी। जब वो स्नान कर रही थी उस समय कृष्ण जो है वे कुछ धूली लेकर उसका स्वाद लेने लगे, उसे खाने लगे। और जैसे उन्होंने खाना चालू किया, गोपियों ने देख लिया, और गोपियां जो है उन्होंने जाकर के यशोदा माता को ये घटना बता दी कि किस तरह से कृष्ण जो है वो मिट्टी खा रहे हैं। इतना सुनने मात्र से ही यशोदा माई पुनः वापस आती हैं, और वो कृष्ण से पूछती हैं क्या उन्होंने मिट्टी खाई, और वो कृष्ण का मुख खोल के देखना चाहती है कि मिट्टी खाई है या नहीं। और जैसे ही वे भगवान कृष्ण का मुख खोलती हैं, उन्हें पूरे ब्रह्मांड का दर्शन हो जाता है। सारे चराचर जीव, सारे 14 भुवन, सारे 14 लोक, तल अतल वितल सुला, तलातल महातल रसातल पाताल,
भूर्भुवः स्वः, सब सब कुछ उसमें, अनंत कोटि ब्रह्मांड। और फिर वो सबसे आश्चर्यजनक बात ये थी कि उसके अंदर वे मथुरा मंडल के अंदर वे गोकुल देख पा रही है, गोकुल के अंदर वे स्वयं को भी, स्वयं और कृष्ण को भी उस मुख में देख पा रही है। और ये सब देखने मात्र से ही माता का जो सर है वो चकरा गया और उन्हें समझ नहीं आ रहा था ये क्या हो रहा है। Then she'll start immediately praying, "Oh, Narayana, please help." So they will just, she'll think about Lakshmi Narayan. She'll just pray, "Krishna, what is this? I'm not able to understand." And then Krishna will make a big smile, and then and then she, and then he will make her forget everything once more, just like that. और क्या कहते हैं, यशोदा माई जो है वो तुरंत ही भौचक्की रह जाती, चकरा जाती, विस्मित रह जाती हैं कि हो क्या रहा है। और फिर वो तुरंत ही जो है नारायण से प्रार्थना करने लगती है, भगवान नारायण ये क्या हो रहा है, मेरे बालक की रक्षा करो। और फिर योग माया के द्वारा कृष्ण जो है उनकी मति को हर लेते हैं और पुनः वो सारी इन चीजों को, लीलाओं को भूल जाती हैं, विस्मृत हो जाती हैं। This is one of the most important leelas when Krishna exhibited in his right very small childhood leela that he is the supreme personality of Godhead. ये बहुत ही दुर्लभ लीला है जिसमें भगवान स्वयं ने अपने ऐश्वर्य का दर्शन कराया और ये साबित किया कि वही जो है वही परम पुरुषोत्तम भगवान है। We will take darshan of that God, and there is also one small temple where Krishna, similar to having laddu in his hand, he'll be having mitti, that dhuli in his hand. We'll take darshan. तो हम ब्रह्मांड घाट का दर्शन करेंगे जहाँ पर वो छोटा सा मंदिर भी स्थित है और यही वो स्थल है जहाँ पर भगवान ने जो है मट्टी खाई थी। यमुना जी के भी दर्शन कर पा रहे हैं आप लोग? That we can go next. This is that temple. ये घाट पर स्थित हो। Yes. Okay. We'll go next to. Yeah, we can go next. So next is the beautiful Damodar Leela. Damodar Leela is considered one of the most auspicious, most relishable, and also lot of tatparyam, lot of realization and things in Damodar Leela. अब हम उस दामोदर लीला के स्थल पर हम पहुंचेंगे, उसका दर्शन करेंगे। ये लीला जो है बहुत ही भगवान की जहाँ पे जो इस लीला में आचार्यों ने बहुत ही विस्तृत रूप से बहुत ही टीका टिप्पणी लिखी है और बहुत ही विस्तृत रूप से विस्तार पूर्वक जो है इस लीला की गहराइयों को, इस लीला के तात्पर्यों को और इस लीला के उद्देश्य को प्रकट किया है। Maybe we can just tell in a short way. So Krishna, when he starts crawling and starts walking, so he will all go to other gopis' house and start stealing butter and milk also. So every day, even though Krishna, all the gopis desire in their heart that Krishna wants to come and steal butter in their home. So they will all go and complain to Yashoda Maya that no, Krishna has started crawling, he started walking, but slowly he is coming and stealing our butter. And then Yashoda Maya will be saying, no, my child is very innocent. He will not do anything. No. He is always coming and taking. So she will, one day, this happened on the Diwali day. So that day she will decide that, okay, I myself will make very nice butter for Krishna. So early morning she will wake up and then she herself will go and take very nice scented milk and she will start boiling the milk. तो ये लीला जो है बहुत ही विस्तृत है, लेकिन समय के अभाव के कारण हम इसे संक्षेप में ही इस लीला का वर्णन करेंगे और प्राय सारे भक्तों को इस लीला के बारे में विस्तार पूर्वक पता है, तो इस उद्देश्य से हम इस लीला को बहुत ही संक्षेप में बताएंगे। तो लीला ऐसी है कि कृष्ण जो है अपने बाल्यकाल में गोपियों के घरों में जाते थे, वहां से माखन चुराते थे यशोदा माई को, और गोपियां जो हैं वो प्राय चाहती थी कि कृष्ण उनके घर पे आए और माखन को चुराएं और उन लीला का वो आस्वादन करती थी। लेकिन अमोद प्रमोद के स्तर पर वे जाके इस चीज की शिकायत भी माता से करती थी कि कृष्ण जो है उनके घरों के माखन को चुरा लेता है।
ये सोचकर, ये सुनकर माता यशोदा को बहुत ही लज्जा का अनुभव हुआ और उन्हें लगा कि हो सकता है कि कहीं जो हम अपने घर में मक्खन जो ठीक से नहीं बनाते, इस वजह से कृष्ण जो है प्रायः दूसरों के घर पे जाके मक्खन चोरी करता है। और इसलिए उन्होंने एक दिन, ये लीला जो है वो दीपावली के दिन घटित हुई थी। तो दीपावली के दिन माता यशोदा जो है वो गायों के जो सुगंधित, जो गायें, उन गायों का जो सबसे सुगंधित दूध देती थी, उन दूध से लेके वे मक्खन बनाने का वो प्रयास करती हैं। मतलब मक्खन बनाने के लिए वो बैठ जाती है। So you all know Nanda Maharaj had more than 9 lakh cows, and then out of the 9 lakh cows, there were some special cows which give all different varieties and perfumes, milk. So Yashoda Maya will select that milk and she'll start boiling. That point of time, Krishna will wake up and he will also come crying like, I want milk. So Yashoda will give her milk to Krishna. But at that time, when the milk starts boiling in the stove, immediately she will keep Krishna aside and then she will run. And that point of time, Krishna becomes very angry. He goes to the next room where there will be a lot of pots lined up with all the makkan. He will start throwing stone, and then when the makkan falls down, he will start eating. And also at that time, all his monkeys, friends, everybody will start coming and seeing this beautiful scene in the home, and then he will start giving that makkan to all his friends also, including the monkeys. तो जैसा कि आप सबको ज्ञात है, नंद महाराज के पास 9 लाख गायें थी और इन गायों में कुछ विशिष्ट गायें थी जो बहुत ही सुगंधित दूध देती थी। उन गायों के दूध को लेकर माता यशोदा जो है वो मक्खन निकालने का प्रयास करती हैं। और क्योंकि बहुत भोर का समय होता है तो बालक कृष्ण जो है उस समय उन्हें माँ के स्तन का दूध पीने की इच्छा होती है और वो स्थल पर आते हैं जहाँ पर माता जो है वो मक्खन निकाल रही होती है। माता से आमोद प्रमोद, माता से स्नेह की उपेक्षा लेकर कृष्ण जो है माता की गोद में बैठते हैं और उसी दौरान जो है चूल्हे पे रखे हुआ दूध, माता ने चूल्हे पे दूध गर्म होने के लिए रखा था। माता जो है कृष्ण को नीचे रखती हैं और चूल्हे पे रखे दूध को बचाने के लिए जाती हैं। और इस दौरान कृष्ण बहुत क्रोधित होते हैं और पास के कमरे में जाते हैं जहाँ पे मक्खन से लबालब भरे हुए कई मटके रखे होते हैं। कृष्ण क्रोधित होते हैं, उन मटकों को तोड़ते हैं और साथ ही साथ जो है अपने जो मित्रों को बुलाते हैं, खिड़की से या दरवाजे से मित्रों को बुलाते हैं जो कि कोई और नहीं बंदर होते हैं, उन्हें बुलाते हैं और उन्हें भी प्रचुर मात्रा में मक्खन बांटते हैं। Then immediately when she sees that Krishna is not there, she slowly comes back and then find out where he is. And then when she tries to catch hold of him, he starts running in and around this courtyard. The courtyard is so big, like it is so, because now this Utkal Bandhan is little away from the Gokul place, but at that point of time it was so big, very big palace. So he will start running here and there, and finally she will catch him, and then with the same Utkal in which he climbed and took that pot, so she will bind him. So during that binding, you all know, that 2-inch will be short, and then somehow when she was trying to do with all the ropes, she couldn't do it, and then when finally Krishna says, here, you take this and do, then she immediately should be able to. सो लीला ऐसी बढ़ती है कि माता यशोदा जो है वो वापस आती है और देखती हैं कि कृष्ण वहां पे मौजूद नहीं है, वहां पे उपस्थित नहीं है। वो कमरे में जाती हैं, देखती हैं वहां पे कृष्ण जो है वो बंदरों को मक्खन बांट रहे हैं। माता बहुत क्रोधित होती है, कृष्ण माता को देख के वहां से दौड़ते हैं, भागते हैं। माता से बचने के लिए माता जी एक डंडा उठाती है और कृष्ण को पकड़ने के लिए, कृष्ण को शिक्षा देने के लिए दौड़ती है उनके पीछे और फिर किसी तरह से कृष्ण को वो पकड़ पाती हैं। जब कृष्ण को पकड़ पाती हैं तो जैसा आपको कथा पता है कि माता जो है रस्सी लेकर कृष्ण को बांधने के लिए जब भी प्रयास करती हैं, वो रस्सी जो है वो 2 इंच कम पड़ जाती है। और फिर किसी तरह से काफी अथक प्रयास करने के बाद कृष्ण जो है वो उस पहली रस्सी को माता को देते हैं, कि कहते हैं कि लो इससे बांध दो। और फिर माता जब बांधती है तो उस रस्सी से तो कृष्ण जो है बंध जाते हैं। तो वर्तमान काल में ये जो उखल बंधन जो स्थल है वो काफी दूर स्थित है, लेकिन पुरातन काल में ये जो नंद महाराज का जो आंगन था वो बहुत ही विशाल हुआ करता था।
after she binds this, after she binds Krishna, and then she goes inside to do her daily activities, Krishna sees that there were two very huge, large Yamalarjula trees. Okay, these trees were two Gandharvas, sons of Kubera, the treasurer, Nala Kubera and Manigriva. So they were cursed by Narada Rishi. So Krishna wanted to relieve them because he knows that when his pure devotee gives some kind of a benediction, he has to be, or a curse, he has to fulfill it. So goes in between those two trees and then just pulls the grinding motor, and just by pulling the two trees, so large trees, just like that, they will both will fell down with big tumultuous sound. माता जो है कृष्ण को पकड़ती हैं और उन्हें कृष्ण को उखल में बांध देती हैं। उखल को बांधने के बाद माता जो है अपने दैनंदिन कार्य में लग जाती हैं, और उखल में बंधने के बाद कृष्ण कुछ लीला करने की सोचते हैं, और उखल के साथ ही साथ पड़ोस में ही स्थित जो यमला अर्जुन जो वृक्ष हैं उनका उद्धार करने की सोचते हैं। वे उन दोनों वृक्ष के मध्य में जाते हैं उखल लेकर, और उनके मध्य में जाने मात्र से वो जो विशाल यमला अर्जुन के वृक्ष हैं वो ढहकर गिर जाते हैं, और उनके गिरने से इतना कोलाहल होता है कि सारा जो जगत है, सारा जो गोकुल है वो गुंजायमान हो जाता है। और उन दो यमला अर्जुन पेड़ों के मध्य से दो देव पुरुष निकलते हैं, जो कि कोई और नहीं कुबेर जी के दो पुत्र नलकूबर और मणिग्रीव होते हैं। और इनका उद्धार कृष्ण ने, नारद मुनि ये नलकूबर और मणिग्रीव को नारद जी से श्राप मिलने के कारण इन्हें पेड़ का स्वरूप मिला था, और नारद मुनि ने उन्हें वचन दिया था कि आप जो है नंद महाराज के आंगन में ही आप दो वृक्ष के रूप धरेंगे और कृष्ण जो है आपका उद्धार करेंगे। तो नारद मुनि के वरदान की पूर्ति के लिए, उनके वाक्यों की पूर्ति के लिए, उनके वचन की पूर्ति के लिए कृष्ण जो है इन दो यमला अर्जुन वृक्ष नलकूबर और मणिग्रीव का उद्धार करते हैं। Okay, we'll keep going. We'll take darshan and then we'll close for today. Yeah, this is the place, very small one. यही स्थल है जहाँ पे वर्तमान काल में ऐसा माना जाता है कि यहाँ पे उखल बंधन लीला हुई थी। Is that more? So now they have placed it inside little so that it is safe. So we can take darshan of the grinding motor and the. तो उखल है और उसके बगल में आप भगवान के चरण चिन्ह हैं, और इसे वर्तमान समय में सुरक्षित करके एक ग्रह के अंदर रखा गया है, जिससे ये उखल जो है वो सुरक्षित है। आप इसके दर्शन कर पा रहे हैं। Mother Leela ki jai. Okay, next. I think little close photo there also there. Now the oldest paintings inside. इस मंदिर के प्रांगण में ही दीवारों पे ये चित्रकारी भी की गई है। बहुत ही पुरातन चित्रकारी है, जिसमें कृष्ण जो है यमला अर्जुन वृक्षों को उखल से गिरा रहे हैं, और उसमें से जो दिव्य देव पुरुष निकल रहे हैं, जो कि कोई और नहीं नलकूबर और मणिग्रीव हैं, कुबेर के दो पुत्र। और ये बहुत से निकट से लिया गया है चित्र, इसके भी दर्शन आप कर सकते हैं। I think tomorrow we'll continue with. So from here, what will happen is, most importantly, all the they will discuss with Upananda. Upananda, as we know, he will come and advise that I think this continue to living here will be much more dangerous because it is very close to Mathura,
and Kamsa will try to somehow or other try to kill Krishna. So we will all move. So that night itself, all of them will decide, and Nanda Maharaja will say, okay, we all move. So they will make the entire community of Nanda Maharaja and this all Gopa Gopis, they will start moving from Gokul towards Nandagaon. So this is the only main, these are the main leelas that was happened here in Gokul. First was transfer, like moving from Mathura to Gokul, Krishna, Balram, and then killing of Putana, then killing of Trinavarta, killing of Shakadachura, and this Brahmanda God, Brahmanda Leela, and this Damodar Leela. So after that, they will move to via Chatikara, they will move to Nandagaon. So after the movie to Nandagaon only, all the pastimes. But in between this is a very sweet pastime of meeting Srimati Radharani, which we will describe tomorrow. Hare Krishna. हरे कृष्णा। तो अब हम यहाँ से यहीं पे आज विश्राम करेंगे, आगे की लीला का जो है आस्वादन या यात्रा का आस्वादन करेंगे। अब हम इस दामोदर लीला के उपरांत ही उपनंद जो है वो बाकी गोप सखाओं को ये विचार देते हैं, ये सलाह देते हैं कि हमें यहाँ से चले जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही घटनाएं हो रही हैं। और उसके बाद ही यहाँ से जो गोप हैं, सारे गोप यहाँ से छठीकरा होते हुए नंदगांव की ओर प्रस्थान करते हैं। तो इस गोकुल क्षेत्र में जो लीलाएं हुई हैं उसमें सबसे महत्वपूर्ण लीलाएं हैं भगवान का मथुरा से गोकुल में स्थानांतरण, पूतना का वध, सक्टासुर का वध और तृणाव्रत का वध, और उसके बाद ब्रह्मांड घाट में भगवान ने अपने मुखारविंद में अनंत कोटि ब्रह्मांड का यशोदा मैया को दर्शन कराना, और फिर नलकूबर और मणिग्रीव और उखल बंधन लीला और नलकूबर और मणिग्रीव का उद्धार। तो ये सारी घटनाएं जो है इस गोकुल क्षेत्र में हुई है। इसके आगे की यात्रा की शुरुआत हम कल करेंगे। आज यहीं पे विश्राम करेंगे। हरे कृष्णा। तो किसी भी महानुभाव